Hello everybody, students of class 11th. So again we have to do the same chapter. We could not complete it. 11th snapshots. Chapter 1, the sum of the beautiful white horse. There are two word meanings I have written here. I will discuss them after some time. In my last class I convinced you that Murad and Aram, they were cousins. Murad had got a horse from somewhere. It's not clearly given here that what exactly happened. Till now, so far we don't know. Maybe by the end of this chapter we'll come to know. Murad knew horse riding, but Aram didn't. One day, Murad came to call Aram for horse riding. Aram joined. Murad alone did the horse riding. Well, very well. But Aram couldn't. As he started doing it, he fell down and the horse ran away. Aram had doubt that perhaps Murad had been horse riding for a long time. He had the doubt that he had stolen the horse. But Murad didn't reply it directly. He said that if we are caught someday, we have to say that only this morning we got the horse. Murad said to Aram that whenever we are caught, we will say to that person that only this morning we got the horse. Murad said, I am not speaking the truth, but we have to say this only. Otherwise, he will say something different, I will say something different, and both of us will be proved liars. Aram said, all right. There was a farmer, John Byro, and his white horse was stolen. He was a frequent visitor of Aram's house. Aram के घर वो आता जाता था. And he was complaining one day to Uncle Khosrow that last month my horse was stolen and so far I have not got it. I don't know what happened. Uncle Khosrow, as his nature was, he stopped him by scolding. What is the use of this? Why are you shouting? You have lost only the horse. It's not worth much. ज़्यादा कीमत नहीं है. Pay no attention to it. It's no harm. कुछ नहीं होगा. इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. He always spoke like that. Now let's proceed. That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said. But what of my Surrey? What good is a Surrey without a horse? जॉन बायरो ने अंकल खुसरो से बोला कि तुम्हारे लिए कहना सही है, ठीक नहीं है, क्योंकि तुम सिटी ड्वेलर हो. ड्वेलर मीन्स रहने वाला. सिटी में रहने वाले लोग, तुम्हारे लिए हॉर्स की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि तुम लोग यूज करोगे ही. लेकिन अब तुम सोचो कि हॉर्स के साथ जो कार्ट होता है, घोड़ा गाड़ी, तो हॉर्स अगर नहीं हो तो गाड़ी का मैं क्या करूंगा? अचार डालूंगा क्या? उसका क्या काम है? सरे का. SURREY. सरे मीन्स कार्ट, वो गाड़ी. तो उसका क्या यूज है? हॉर्स नहीं है. तो हॉर्स रहेगा तब तो मैं हॉर्स के साथ उस गाड़ी को कहीं लेके जा सकता हूँ. पे नो अटेंशन टू इट. अंकल खुसरो रोड. चिल्लाते हुए अंकल खुसरो ने फिर से बोला, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है. I walked 10 miles to get here, John Byro said. जॉन बायरो ने बोला कि यहां तक मैं 10 माइल्स चल के आया. अगर हॉर्स कार्ट अगर होता मेरे पास तो मैं हॉर्स कार्ट से आता, घोड़ा गाड़ी से आता. यू हैव लेग्स, माय अंकल खुसरो शाउटेड. अंकल खुसरो ने चिल्लाते बोला, आपके पास लेग्स हैं, मतलब आप चल सकते हो. माय लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड. फार्मर ने बोला, लेफ्ट लेग में पेन हो रहा है मुझे. पे नो अटेंशन टू इट. माय अंकल खुसरो रोड. फिर से चिल्लाते हुए अंकल खुसरो ने बोला, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मतलब पेन हो रहा है तो होने दो, कुछ नहीं होगा. That horse cost me $60.
द फार्मर सेड, फार्मर ने बोला जॉन बैरो ने कि उस हॉर्स की कीमत मुझे लगी है $60। $60 मतलब हम लोग कह सकते हैं 4,800 ऑलमोस्ट 4,800। आई स्पीड ऑन मनी, माय अंकल खुसरो सेड, अंकल खुसरो ने बोला कि मैं पैसे पे थूकता हूं, मैं मतलब मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है पैसों की। He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. उठ खड़े हो गए अंकल खुसरो और घर से बाहर चले गए। दरवाजा जो था, डोर जो था, उसको काफी जोर से स्लैम करते हुए, काफी जोर से बंद करते हुए। माई मदर एक्सप्लेन्ड, अब मम्मी ने बताया, आरम की मम्मी जॉन बैरो को कुछ बता रही है। He has a gentle heart, she said. It's simply that he is homesick and such a large man. मम्मी ने थोड़ा सा अंकल खुसरो का सपोर्ट लेते हुए, डिफेंड करते हुए बोला कि बहुत अच्छा दिल है उसका, अंकल खुसरो का। थोड़ा जबान का थोड़ा कड़वापन है जबान में, और होम सिकनेस है। होम सिकनेस क्या होता है? जब कोई अपने घर से दूर होता है तो घर की याद आती है। कोई स्टूडेंट हो सकता है, कहीं दूर जगह को पढ़ने के लिए जाता है, तो वहाँ से मम्मी को याद करता है, पापा को याद करता है, अपने सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर को याद करता है, मिस करता है। दैट इज कॉल्ड होम सिकनेस। कई बार ऐसा होता है कि बाहर रह नहीं पाता है, चला आता है, उसे होम सिकनेस कहते हैं। The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. फार्मर चला गया अपने घर और अरम मुराद के पास गया दौड़ता हुआ। अब क्या बात होगी? He was sitting under a peach tree trying to repair the hot wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. वो एक पीच इट्स अ काइंड ऑफ ट्री, उस ट्री के नीचे बैठा हुआ था, और रॉबिन इट्स अ काइंड ऑफ बर्ड, एक तरह का बर्ड होता है, उसके विंग को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था पीच ट्री के नीचे बैठ करके, और वो बर्ड से टॉकिंग भी कर रहा था, बातें भी कर रहा था। व्हाट्स इट, ही सेड, उसने बोला, मुराद ने, क्या हो गया आरम को देख कर। द फार्मर जॉन बैरो, आई सेड, he visited our house. He wants his horse. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn to ride. बोला कि फार्मर जॉन बैरो हमारे घर आया था और वो अपना हॉर्स वापस चाहता है। इसे पता चल गया कि उसका हॉर्स चोरी हुआ है, मुराद के पास जो हॉर्स है वही हॉर्स है। कहा कि लास्ट मंथ से ये हॉर्स तुम्हारे पास है, मुझे पता चल गई ये बात, और मैं तुमसे एक प्रॉमिस लेने के लिए आया हूं कि इसको वापस नहीं करना। दौड़ता वैसे गया था, लगा कि जैसे कोई जाकर के अब इसको डांटेगा कि तुमने हॉर्स क्यों चुराया, हॉर्स क्यों रखा किसी और का है, ऐसे ही दौड़ता हुआ गया था। लेकिन अब तो लग रहा है कि इसके दिल में भी डिसऑनेस्टी थी, बेईमानी थी। बोला कि जब तक मैं लर्न नहीं कर लूं, सीख नहीं जाऊं हॉर्स राइडिंग, तब तक इस हॉर्स को वापस मत करना। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माय कजन मुराद सेड। मुराद ने बोला कि तुम्हें 1 ईयर लग जाएगा सीखने में। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। आरम ने बोला ठीक है 1 ईयर रखेंगे हॉर्स को, जब तक मैं सीख नहीं जाऊंगा इस हॉर्स को वापस नहीं करेंगे। माय कजन मुराद लिफ्ट टू हिज फीट। मुराद जो बैठा हुआ था खड़ा हो गया। व्हाट, ही रोड, चिल्लाते बोला, व्हाट, आई इनवाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरोग्लिनियन फैमिली टू स्टील, द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर। कहा कि गैरोग्लिनियन फैमिली के किसी मेंबर को तुम चोरी करना सिखा रहे हो? चोरी करना कहाँ सिखा रहे हो? चोरी तो उसने पहले ही कर ली, ये तो सिर्फ रखने के लिए बोल रहा है। बोला कि मुराद ने बोला कि हॉर्स अपने रियल ओनर के पास जरूर जाएगा। When, I said. आरम ने बोला when? In 6 months at the latest, he said. इसने बोला था 1 ईयर, उसने बोला मैक्सिमम होगा तो 6 मंथ्स, उससे ज्यादा नहीं। 6 मंथ्स तक ही हम लोग रख सकते हैं, 6 मंथ भी कम थोड़ी होते हैं। He threw the bird into the air and the bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away high and straight. और बर्ड को हवा में उड़ा दिया। जो रॉबिन बर्ड जो उसके हाथ में था, जिसके विंग को रिपेयर कर रहा था, उसको हवा में उड़ा दिया, छोड़ दिया उसे।
बर्ड काफ़ी कोशिश कर रहा था उड़ने के लिए, 2 बार वो करीब गिर भी गया था, मतलब गिरने ही वाला था, लेकिन फाइनली वो उड़ गया, हाई एंड स्ट्रेट. Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard, where we were hiding it, and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. Nevertheless, I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad rode. अब क्या होता था, एवरी मॉर्निंग में हॉर्स को उस बार्न में, जहाँ पे लोग डेजर्टेड बार्न में, डेजर्टेड एबंडेंट, जहाँ पे कोई रहता नहीं है, और स्ट्रोक आउट इसमें पहले था, मतलब टू कम आउट, निकल जाना, जहाँ अंकल खुसरो निकल गया था गुस्से से, उस डेजर्टेड बार्न से हॉर्स को ये लोग निकालते थे और मॉर्निंग में हॉर्स राइडिंग करते थे. बहुत अच्छी तरह से मुराद करता था, और जब भी इसका टर्न आता था आराम का, तो हॉर्स आराम को गिरा करके जहाँ अंगूर की लताएं वगैरह थी उधर भाग जाता था, इसको गिरा करके, आराम को गिरा करके. लेकिन फिर भी होप था ही, उम्मीद थी ही आराम को कि मैं कभी ना कभी जरूर हॉर्स राइडिंग सीख लूंगा. जिस तरह से मुराद को राइडिंग आती है वैसे ही. One morning on the way to Fedvegian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. अब क्या हुआ था, वन मॉर्निंग, जिस वक्त ये लोग हॉर्स राइडिंग करके वापस जा रहे थे, अब हॉर्स को वापस रखने के लिए, वो जगह जो थी फेटवेजियन की थी, पहले बताया गया था. फेटवेजियन कोई फार्मर था, उसकी वो जमीन थी, अब वो वहां पे रहता नहीं था, कहीं चला गया था वो. रन इनटू मतलब मुठभेड़ हो जाना, फेस हो जाना, सामना हो जाना. तो अब इन दोनों, ये दोनों जो हॉर्स को लेके जा रहे थे, इन दोनों का सामना हो गया जॉन बायरो से. जॉन बायरो टाउन जा रहा था, ये लोग हॉर्स लेकर के आ रहे हैं, जॉन बायरो मिला. लेट मी डू द टॉकिंग, माई कजन मुराद सेड, आई हैव अ वे विद फार्मर्स. यहाँ भी वही बात कह रहे हो, बोला मुझे बात करने दो, मुझे पता है कि आई हैव अ वे विद फार्मर्स, मुझे फार्मर्स से पता है कैसे बातचीत की जाती है. इसके पहले बोलता हॉर्स के लिए, आई हैव अ वे विद द हॉर्स, मुझे तरीका पता है कैसे हॉर्स को कंट्रोल किया जाता है. यहाँ भी वैसे ही कह रहा है. गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माय कजन मुराद सेड टू द फार्मर. जॉन बायरो से मुराद ने बोला, गुड मॉर्निंग जॉन बायरो. द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली. उस फार्मर को हॉर्स दिखाई दिया. अगर हम किसी की कोई चीज चुराएंगे, चोरी तो हम नहीं करेंगे, दैट्स वेरी बैड थिंग, लेकिन अगर किसी को परेशान करने के लिए करते भी हैं कि परेशान करना है, तो वो चीज़ उसके सामने कभी नहीं लाएंगे. जब तक उसे परेशान करना हो तब तक वो चीज़ उसके पास नहीं लाएंगे, पहचान लेगा. ऐसा भी होता है कई बार, अगर किसी की कोई चीज़ खो गई हो और वैसी ही हमारे पास हो, उसे दिख जाए जिसकी खोई है, तो वो कहेगा कि मेरी है, चाहे पेन बुक नोटबुक या कोई भी चीज़, ये मेरी है, क्योंकि उससे वो रिजेंबल करेगा, एक जैसा होगा, वो बोलेगा मेरी है. उस फार्मर ने हॉर्स को काफी गौर से देखा. गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स. जॉन बायरो ने बोला, गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, तुम्हारे व्हाट द नेम ऑफ योर हॉर्स. माई हार्ट, माई कजन मुराद सेड इन अर्मेनियन लैंग्वेज में बोला मुराद ने, माई हार्ट, तो इसका नाम है माई हार्ट. अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड फॉर लवली हॉर्स. लवली हॉर्स के लिए लवली नेम, बहुत अच्छा नेम है, ब्यूटीफुल नेम. आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो. मे आई लुक इनटू हिज माउथ. उसने बोला जॉन बायरो ने कि मैं कसम खा के कह सकता हूं कि ये हॉर्स वही है जो हॉर्स मेरा मैनी वीक्स पहले चोरी हो गया था. क्या मैं इसके माउथ में देख सकता हूँ? माउथ मतलब दांत देखने की कोशिश कर रहा चाहता है वो. हॉर्सेस की पहचान दांतों से होती है. ऑफ कोर्स मुराद सेड, मुराद ने बोला ऑफ कोर्स. द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स. फार्मर ने
हॉर्स के माउथ में देखा, मतलब टीथ देखा. टूथ फॉर टूथ, he said. I would swear it is my horse if I didn't know your parents. The fame of your family for honesty is well known to me. Yet the horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. उसने क्या बोला जॉन बैरो ने कि मेरे हॉर्स में जैसे टीथ थे वैसे ही टीथ, टूथ फॉर टूथ सेम है. तो मैं कसम खा के कहता, अब क्या कह रहा है कि कहता, मैं कसम खा कर कहता कि ये हॉर्स मेरा ही है अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो. क्योंकि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ, तुम्हारे फैमिलीज को जानता हूँ मैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरा हॉर्स. ये कहने का मतलब हो जाएगा कि तुमने मेरा हॉर्स चुराया है, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा. क्योंकि तुम्हारे फैमिली की जो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी का जो फेम जो है, प्रसिद्धि फेम जो है, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे फैमिली में, तुम्हारे कास्ट में सभी लोग ऑनेस्ट हैं. तुम भी ऑनेस्ट होगे, तो मैं कैसे कहती हूँ हॉर्स मेरा है. लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि ये हॉर्स मेरे हॉर्स का ट्विन है, मेरे हॉर्स का जुड़वा है, सेम टू सेम. मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा ही हॉर्स. अब क्या बोला, एक लाइन यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है. यहाँ पे कहा कि जो सस्पिशियस मैन होगा, जिस आदमी को शक होगा, वो अपनी आंखों पे यकीन करेगा, जो वो देख रहा है उसमें, उस पर यकीन करेगा. दिल की बात वो नहीं मानेगा, उसका दिल क्या कह रहा है. मतलब क्या हुआ कि मुझे शक नहीं है तुम लोगों की ऑनेस्टी पे, तुम लोग ऑनेस्टी पे मुझे शक नहीं, मैं जानता हूँ तुम लोग काफी ऑनेस्ट हो. इसीलिए मैं जो देख रहा हूँ कि हॉर्स मेरा ही है, इस लाइन में ये बातें छिपी हुई है. जो देख रहा हूँ मेरा हॉर्स मेरा ही है, ये बोल नहीं रहा है, मतलब इस लाइन में ये बातें छिपी हुई है. तो मेरा दिल जानता है, मेरा हार्ट जानता है कि तुम लोग ऑनेस्ट फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम लोग ऑनेस्ट हो. मेरी आंखें देख रही कि वही हॉर्स है, लेकिन मुझे सस्पेक्ट नहीं हो रहा है, मुझे कोई शक नहीं है कि हॉर्स मेरा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं तुम्हारे हाथों में है और तुम लोग कभी चोरी नहीं कर सकते हो. इस लाइन का ये मतलब है. तो जो शक करेगा वो अपने दिल की बात नहीं सुनेगी, अपनी आंखों पे यकीन करेगा. एक एग्जांपल और देता हूं मैं. अगर हमारी कोई चीज चोरी हो जाए, हमारी कोई चीज चोरी हो जाए और वो चीज हमने फ्रेंड के पास देखी, तो हम उससे बोलेंगे ये चीज मेरी है, क्योंकि मैं आंखों से देख रहा हूँ ये चीज मेरी है. और मेरा जो हार्ट है वो कहेगा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता है, इतना घटिया काम, इतना डर्टी काम नहीं कर सकता है, इतना गंदा काम नहीं कर सकता है, मेरी कोई चीज़ चुरा नहीं सकता है. ये हार्ट बोल रहा है. आंखें क्या कह रही है कि नहीं ये तो मेरी चीज़ है, कल चोरी हो गई थी. तो मैं अपने हार्ट की बात नहीं मानूंगा, मैं अपनी आंखों की बात मानूंगा, नहीं ये मेरी चीज़ मेरी है. भले ही फ्रेंडशिप खत्म होती है तो हो जाने दो. इसका मतलब अपने दिल की बात नहीं. शक है हमें. उसने बोला गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, और वहां से चला गया. गुड डे जॉन बैरो, माय कजन मुराद सेड. मुराद ने भी बोला कि गुड डे. अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बैरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बाथ. द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड. नेक्स्ट मॉर्निंग को वहां से हॉर्स को निकाल करके दोनों कजन्स, ये लोग जॉन बैरो का जो वाइन यार्ड था, जो उसकी जगह जो थी जहाँ पे हॉर्स रखा जाता था, उस जगह पे हॉर्स को पहुंचा दिया बिना कोई साउंड किए. वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स थे जहाँ पे हॉर्स को रखने गए थे. जॉन बैरो की जगह जो थी, काफी डॉग्स थे. द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माय कजन मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क. धीरे से बोला जब वापस आ रहे थे तब, और हमने मुराद को कि मुझे लगा था डॉग्स बार्किंग करेंगे. They would at somebody else, he said. I have a way with dogs. यहाँ पे भी वही बात कह रहा है वो लोग बार्किंग करेंगे किसी और पे, हम पे नहीं, क्योंकि मुझे तरीका पता है कैसे डॉग्स को कंट्रोल करते हैं. एक बार हॉर्स के लिए बोला था, एक बार फार्मर्स के लिए बोला था, अब डॉग्स के लिए बोल रहे हैं. My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse's nose, patted it, and then we went away. कजन मुराद जो था उसको हॉर्स छोड़ने का मन नहीं कर रहा था. उसने क्या किया, अपने आर्म्स हॉर्स के कंधे पे रखे, उसके नोज से नोज मिलाई
पैट किया, पीठ थपथपाई और फिर दोनों वहां से निकल गए। छोड़ने का मन नहीं हो रहा था मुराद का। That afternoon, John Barrow came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. उसी आफ्टरनून को जॉन बैरो अपने कार्ट सरे जो था वो हॉर्स के साथ मतलब लेकर के आया, हॉर्स को भी और कार्ट को भी, और अरम की मम्मी को दिखाया कि जो हॉर्स मेरा चोरी हो गया था वो मुझे वापस मिल गया। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं सोचूं क्या इस बारे में, क्या हुआ था। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, कहा कि पहले के मुकाबले ज्यादा अभी स्ट्रॉन्गर है हॉर्स, पहले जितना स्ट्रॉन्गर था उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। बेटर टेम्पर टू, काफी ज्यादा एक्टिव भी है अभी। आई थैंक गॉड, उसने कहा आई थैंक गॉड। उस जॉन बैरो ने बोला माय अंकल खुसरो हु वाज इन द पार्लर, अंकल खुसरो वहीं बैठे हुए थे, बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, चिल्ला करके बोला गुस्से से, क्वाइट मैन क्वाइट, क्वाइट हो जाओ, चुप हो जाओ, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न्ड, पे नो अटेंशन टू इट, तुम्हारा हॉर्स वापस मिल गया ना, अब इस पे कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अंकल खुसरो का जैसा नेचर था वैसे ही किया। तो क्या था कि हम लोगों के फैमिली में फादर मदर जो है, ग्रैंड फादर हैं, इनका कुछ रेपुटेशन होता है। अगर हम कुछ गलत काम कर दे तो उस रेपुटेशन को ब्लॉट लग जाएगा, धब्बा लग जाएगा। तो सोच समझ करके हमारे एक्शंस होने चाहिए, डिसीजंस होने चाहिए। कोशिश ये करनी है, सोचना पॉजिटिव सोचना है, जैसे हमसे कोई बड़ी गलती नहीं हो जाए कभी, नहीं तो रेपुटेशन जो बना है बहुत टाइम लगा है उसमें, वो डैमेज होने में टाइम नहीं लगेगा। सब कहेंगे कि इनका ग्रैंडसन था, इनकी ग्रैंड डॉटर थी, इनका सन था, इनकी डॉटर थी। सोच समझ करके हमें काम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।